Hello everyone, this is Mansi Pawar and I welcome you all on the Pharma Intellect YouTube channel. आज के वीडियो में हम क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में पढ़ेंगे. क्लिनिकल ट्रायल्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन द फार्मास्यूटिकल फील्ड एज वेल एज फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. So I request everyone to watch this video from start to end. So let's get started. We will start with the basics. We will start with the definition of clinical trials. So clinical trials simply means testing of our new drug molecule in the human volunteers to know its safety and efficacy. So in the more formal way, we can say that clinical trials are the research studies conducted on human volunteers to evaluate the safety and effectiveness of the new drug product. Okay, I hope I am clear with the definition. Let's move ahead and see when the clinical trials are conducted. So इसको जानने के लिए पहले हम देखेंगे drug discovery and development phases. So first phase is a drug discovery phase where the new chemical entities are found out to treat a particular disease. Once we have the new chemical entities, we test those new chemical entities in the animals. So animals पे जो studies की जाती है उसको हम प्री क्लिनिकल स्टडीज़ बोलते हैं. प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में हम देखते हैं कि वो जो न्यू केमिकल एंटिटी है वो कितनी सेफ और इफ़ेक्टिव है इन द एनिमल्स. Right, we generate the safety and effectiveness profile of the new chemical entities in the animals. Once the animal studies are done, we file IND application. IND application is nothing but the investigational new drug application. So regulatory agency IND application को review करेंगी और हमें approval देंगी. After the IND application is approved, the clinical studies are conducted. Okay, so this is a main phase, right? After the IND application we can start the clinical studies. So clinical studies में हम new drug product को human volunteers पे test करेंगे. After the clinical studies are done, we file NDA application to the regulatory agency. NDA is nothing but the new drug application. So agency जो होती है वो अपने application को review करती है and on the basis of the data provided in the application, the agency grant us the approval, right? So the things does not stop here. उसके बाद भी एक फेज़ होती है जिसको हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस फेज़ बोलते हैं. जब हमारा ड्रग प्रोडक्ट एक्चुअल में पेशेंट्स को जा रहा है, जब एक्चुअल में वो मार्केट में है, तब उसका सर्विलियंस किया जाता है, उसका सर्वे किया जाता है कि उससे कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म और द रेयर साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं जो कि हमारे क्लिनिकल स्टडीज़ में कैप्चर नहीं हुए हैं, राइट? सो जो लॉन्ग टर्म और द रेयर साइड इफ़ेक्ट्स को देखने के लिए ये फेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस हम उसको बोलते हैं, राइट? सो क्लिनिकल स्टडीज़ as we have seen, if the drug is found to be promising in animal studies, an application called IND is filed with the United States Food and Drug Administration, and if the permission is granted, then the drug is tested in the humans, and this testing is called as a clinical trials. Okay, so let's move ahead and see how the clinical trials are conducted. So clinical trials को कंडक्ट करने के लिए हमने उसको 5 phases में डिवाइड किया है. So 5 phases here you can see on the screen, right? So phase 0 and then phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4. So phase 0 is also called as a microdosing studies. Phase 1 is a human pharmacology and safety studies. Phase 2 are the therapeutic exploratory studies. Phase 3 are the therapeutic confirmatory studies and phase 4 is nothing but the post marketing surveillance. सो जैसे ही हम फेज़ 0 से फेज़ 4 की तरफ जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जाएंगे. पार्टिसिपेंट्स आर नथिंग बट द ह्यूमन वॉलंटियर्स एंड वैसे ही ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी इंक्रीज होता जाएगा. सो फेज़ 0 में कम टाइम लगेगा, फेज़ 1 में उससे ज़्यादा, फेज़ 2 में उससे ज़्यादा, फेज़ 3 में
उससे ज़्यादा, और फेज 4 में, फेज 4 इज नथिंग बट द पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, राइट। सो जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उसको हम जीसीपी गाइडलाइन को फॉलो करके कैरी आउट करते हैं, राइट। सो ICH GCP guidelines are there, which are nothing but the good clinical practices guidelines given by the इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन, राइट। सो ये गाइडलाइंस को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं वी कैन से दैट आवर डेटा इज क्रेडिबल एंड the patients or the volunteers that which were involved in the clinical trials are safeguarded, right. So first phase is a phase 0 phase. It is nothing but the exploratory or the microdosing studies. So इस phase का main importance और the main output है to know the pharmacokinetics and the pharmacodynamics of the drug, right. जैसे कि अभी हमारे पास 5 न्यू केमिकल एंटिटीज़ हैं जिसने एनिमल्स में प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिए हैं. नाउ दे हैव बीन मूव फॉरवर्ड एंड नाउ वी आर टेस्टिंग दैट 5 न्यू केमिकल एंटिटीज़ इन द ह्यूमन बींग्स, राइट. तो अभी हमें देखना है कि इन पाँचों में से कितने न्यू केमिकल एंटिटीज हैं जो कि हम अगले स्टेज में लेके जाएंगे. तो उसके लिए फेज 0 स्टडीज़ की जाती है. फेज 0 इज़ नॉट अ मैंडेटरी फेज इन द क्लिनिकल ट्रायल्स, राइट. बट जो आगे के फेज हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 आर मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग. तो अगर हम फेज 0 में ही कुछ न्यू केमिकल एंटिटीज़ को किल कर देंगे, राइट, तो हमारे आगे के जो फेज है उसकी कॉस्ट और उसका ड्यूरेशन हमें कम लगेगा, राइट. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जनरली फेज 0 में हम 100th ऑफ डोज, जो कि डोज है उसका 100, फॉर एग्जांपल द डोज इज़ 100 mg, तो उसका 100 कितना हुआ, 1 mg ओनली. तो 1 mg डोज हम ह्यूमंस में एडमिनिस्टर करेंगे, राइट. तो 1 mg अगर हमने एडमिनिस्टर किया है तो ऑफकोर्स उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, राइट. अगर वो हेडेक ट्रीट कर रहा है तो हमें वो हेडेक नहीं ट्रीट करेगा, राइट. वो मॉलिक्यूल अगर हेडेक ट्रीटमेंट के लिए है तो वो हेडेक नहीं ट्रीट करेगा बिकॉज हमने बहुत कम डोज दिया है. 100th ऑफ द एक्चुअल डोज हमने एडमिनिस्टर किया है, राइट. तो उससे हमें क्या पता चलेगा, हमें इतना पता चलेगा कि वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे मेटाबोलाइज्ड हो रहा है, कैसे एक्सक्रीट हो रहा है. हमें उसका बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स पता चलेगा और फार्माकोडायनेमिक्स की वो जो रिसेप्टर है वहाँ पे, जो कि जिस रिसेप्टर को उसको बाइंड होना चाहिए वहाँ पे वो बाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी हमें इस स्टडी से पता चलेगा. तो इट हेल्प इन मेकिंग अर्ली गो एंड नो गो डिसीजंस अबाउट द ड्रग कैंडिडेट्स, राइट. जो मॉलिक्यूल्स एक्सपेक्टेड फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स रिजल्ट्स नहीं दिखाएंगे तो ऑफ कोर्स वी विल किल दोज मॉलिक्यूल्स इन द फेज 0 ओनली. उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उसको हम अगले फेज में नहीं लेके जाएंगे. तो इसमें टिपिकली स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टिपिकली fewer than 15. एंड दिस फेज हैज़ नो थेरापेटिक एंड डायग्नोस्टिक इंटेंट. ऑफकोर्स हमने इतना कम डोज दिया है तो ऑफकोर्स उससे कोई इफेक्टिवनेस तो नहीं आएगा, राइट. कोई इफिकेसी हमें नहीं मिलेगी. तो दिस फेज इज मोस्टली डन to select the most promising lead products from the group of candidates designed to interact with a particular therapeutic target in humans based on PK and PD properties, right. I hope I am clear with the phase 0. So phase 0 का main aim है टू नो द फार्माकोकाइनेटिक एंड द फार्माकोडायनेमिक ऑफ द ड्रग. इसमें कोई भी हमें सेफ्टी और इफिकेसी नहीं पता चलेगी. एंड दिस फेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ डिसीजन फॉर द ड्रग मॉलिक्यूल्स. आइदर इट शुड बी कैरीड फॉरवर्ड, इट शुड बी टेकन अहेड और इट शुड नॉट बी टेकन अहेड, राइट. द नेक्स्ट फेज इज द फेज 1 फेज. सो फेज 1 में क्या होता है, इट इज़ फर्स्ट इन ह्यूमन स्टडीज़, राइट. इसमें 20 to 100 हेल्दी वॉलंटियर्स इन्वॉल्व होते हैं.
हेल्दी वॉलंटियर्स, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। इस फेज़ में हेल्दी वॉलंटियर्स को लिया जाता है। तो ऑफ कोर्स अगर हम हेल्दी वॉलंटियर्स ले रहे हैं और उसको हम वो डोज दे रहे हैं, हम वो न्यू ड्रग प्रोडक्ट का डोज दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमें इसकी एफिकेसी तो नहीं पता चलेगी, क्योंकि हेल्दी वॉलंटियर्स है उनमें वो डिसीज़ नहीं है। तो हमें उस ड्रग कैंडिडेट की एफिकेसी नहीं पता चलेगी, बट हमें पता चलेगी उसकी सेफ्टी, कि वो कितना सेफ है, राइट। उसकी टॉलरेबिलिटी, कि कितने हद तक वो टॉलरेबल है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स हमें फर्दर पता चलेगी, राइट। सो इसमें जनरली क्या किया जाता है, डोज एस्केलेशन स्टडीज़ की जाती हैं। जैसे कि अभी हमने पहले ह्यूमन एनिमल स्टडीज़ किए, वहाँ से हमें कुछ डोज मिला पर्टिकुलर, और हमने उसका ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज निकाला कुछ फॉर्मूलाज लगा के, राइट। अभी ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज होता है वो एक रेंज में होता है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम 100 to 300 माइक्रोग्राम, राइट। तो अभी हम इसमें से कौन सा डोज चूज़ करें, तो उसके लिए डोज एस्केलेशन स्टडीज़ की जाती है, कि जो हेल्दी वॉलंटियर्स है उसको हम इंक्रीजिंग क्वांटिटी में डोज देंगे। फॉर एग्जांपल पहले को हमने दिया 100 माइक्रोग्राम, देन दूसरे को हमने 120 माइक्रोग्राम, थर्ड को हमने 140 माइक्रोग्राम, ऐसे करते करते हम 300 माइक्रोग्राम तक डोज देंगे, और देखेंगे कि कौन से डोज तक हमें टॉलरेबल साइड इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं, राइट। कौन से डोज के ऊपर हमें इनटॉलरेबल साइड इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं, तो इससे हमें मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज मिलेगा, राइट। एंड यहाँ से हमें पता चलेगा कि सेफ्टी प्रोफाइल क्या है, व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स एंड द सेफ डोसेज रेंज। सो नो ब्लाइंडिंग इज डन इन दिस स्टडी, द स्टडी इज ओपन लेबल। तो इसका मतलब क्या है, ब्लाइंडिंग का मतलब क्या है, ओपन लेबल का मतलब क्या है। ओपन लेबल मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है और जो वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया है, उन दोनों को पता है कि उन स्टडी कौन सी चल रही है, कौन सा डोज और कौन सा ड्रग एडमिनिस्टर किया गया है, राइट। उसको बोलते हैं हम ओपन लेबल स्टडी, और इसको हम बोलते हैं नो ब्लाइंडिंग, राइट। सो द नेक्स्ट फेज इज सेकंड फेज, फेज 2, which is therapeutic exploratory. So this is first in patient studies. It is subdivided into two phases, phase 2A and phase 2B. Phase 2A is a dose exploration studies, also called as a dose ranging studies, and phase 2B is a efficacy studies or the proof of concept studies, right. So इस फेज में हम पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं ड्रग प्रोडक्ट को। तो ऑफ कोर्स इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें उस ड्रग प्रोडक्ट की एफिकेसी पता चलेगी, कि वो कितना इफेक्टिव है in the humans to treat that particular disease, right. So phase 2A is a dose exploration studies or the dose ranging studies. यहाँ पे हम optimal dose range decide करते हैं, determine करते हैं कि कौन सी dose range में we will have a safe and effective profile for that drug product. So in addition to that, the optimal frequency of dose is also explored, कि हमें जो डोज है, फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड किया कि 100 माइक्रोग्राम डोज हमें सेफ और इफेक्टिव है, राइट। तो कितने फ्रीक्वेंसी में हमें देना है, वो हमें वंस अ डे देना है, और ट्वाइस अ डे देना है, और थ्राइस अ डे देना है, वो भी यहाँ पे स्टडी किया जाता है। तो इसमें मेनली 20 to 200 पेशेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज फेज 2B, इट इज़ अ इफिकेसी स्टडीज़। तो यहाँ पे हम ड्रग की जो इफिकेसी है एट द डिटरमाइंड डोज, वो देखते हैं कि कितना वो इफेक्टिव है वो पर्टिकुलर डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे भी 20 to 200 पेशेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस स्टडी इज मोस्टली कंट्रोल्ड एंड रैंडमाइज्ड एंड मे बी ब्लाइंडेड और ओपन लेबल, एंड इट इज़ जनरली कैरिड आउट एट द 2 to 4 सेंटर्स। सो इसका मतलब क्या है, कंट्रोल्ड एंड रैंडमाइज्ड, मतलब जो भी पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल जो भी पेशेंट्स है अपने पास, फॉर एग्जांपल वी हैव द 200 पेशेंट्स, तो इसको हम रैंडमली डिवाइड करेंगे, राइट। सो सपोज हमने रैंडमली उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इस एक ग्रुप में हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक ग्रुप में हम जो अपना न्यू ड्रग प्रोडक्ट जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसको दे रहे हैं, और तीसरे ग्रुप में हम प्लेसेबो दे रहे हैं। प्लेसेबो का मतलब ये है कि जो ड्रग प्रोडक्ट है उसमें अपना एपीआई है ही नहीं, अपना ड्रग है ही नहीं, वो प्लेसेबो है, इट इज़ अ ड्रग प्रोडक्ट विदाउट द एक्चुअल ड्रग, राइट।
तो प्लेसिबो से तो हमें कोई इफेक्टिवनेस आएगी नहीं, राइट, कोई इफिकेसी आएगी नहीं, राइट। तो इसको भी एक थर्ड ग्रुप को दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम रैंडमाइज्ड स्टडी, और इट में भी ब्लाइंडेड और ओपन लेबल। ब्लाइंडेड मतलब यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है उसको पता नहीं होगा कि कौन सा डोज और कौन सा ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, या फिर पेशेंट्स को पता नहीं होगा कि उनको कौन सी ट्रीटमेंट दी जा रही है। तो इसको हम सिंगल ब्लाइंडेड और डबल ब्लाइंडेड भी बोलते हैं। सिंगल ब्लाइंडेड मतलब आइदर इन्वेस्टिगेटर को पता नहीं या फिर पेशेंट्स को पता नहीं है, और डबल ब्लाइंडेड मतलब दोनों को ही पता नहीं है कि कौन सी ट्रीटमेंट को यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है, राइट। द ओपन और इट कैन बी ओपन लेबल, कि हाँ ओपन लेबल मतलब दोनों को ही पता है कि कौन सी ट्रीटमेंट दी जा रही है, राइट। सो ब्लाइंडेड स्टडीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? ब्लाइंडेड का स्टडीज़ इसीलिए इम्पोर्टेंट है टू अवॉइड द बायसनेस, राइट। अगर पेशेंट्स को पता है कि उनको कोई ड्रग प्रोडक्ट दिया जा रहा है, तो इवन इफ दे आर नॉट गेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट ड्रग प्रोडक्ट, इवन इफ देयर डिसीज इज नॉट क्योर्ड, फिर भी वो सबकॉन्शियसली सोचेंगे कि नहीं, मुझे ड्रग प्रोडक्ट मिला है तो मुझे मतलब इफेक्टिवनेस और उसके इफेक्ट आएगा ही आएगा, राइट। तो इसमें कुछ बायसनेस आ सकती है, इसकी वजह से ब्लाइंडेड स्टडीज कैरी आउट की जाती हैं। The next phase is a phase 3. It is a therapeutic confirmatory phase. It confirms the efficacy of the tested product, right. अभी हमने 20 to 200 पेशेंट्स में देखा कि इफेक्टिवनेस क्या है, इफिकेसी कितनी है, राइट। बट वो 2 to 200 पेशेंट्स और 20 to 200 पेशेंट्स क्या पूरे जो पेशेंट पॉपुलेशन है इन द वर्ल्ड उसको रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं, ऑफ कोर्स अभी हमें मोर नंबर ऑफ पेशेंट्स पे वो टेस्ट करना पड़ेगा कि वो कितना, वो जो ड्रग प्रोडक्ट है वो कितना इफ़ेक्टिव है, राइट। तो यहाँ पे जनरली हम जो इफ़िकेसी है उसको देखते हैं, उसको कंफर्म करते हैं, राइट। सो इट इज़ जनरली अ मल्टी सेंटर और द मल्टीनेशनल ट्रायल्स टू रिफ्लेक्ट द रियल वर्ल्ड यूज़। यहाँ पे जनरली 500 to 5000 पेशेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड दीज आर जनरली रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंडेड, राइट। सो मल्टी सेंटर का और मल्टीनेशनल क्यों लिए जाते हैं? बिकॉज टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट जेनाइटल makeup of the different patients, right. The different patients from the different centers will have the different genital makeup, और उसकी वजह से उनका जो डिसीज ट्रीट करने की जो ड्रग प्रोडक्ट की जो डिसीज ट्रीट करने की जो इफिकेसी है वो भी डिफरेंट आएगी, राइट। तो वो जानने के लिए हम डिफरेंट सेंटर से और डिफरेंट नेशंस से पेशेंट्स को लेते हैं, राइट। देन द नेक्स्ट फेज इज अ फेज 4। सो फेज 4 कब आती है? जब हमने एनडीए एप्लीकेशन फाइल कर दिया और अभी अप्रूव मिल गया, नाउ वी आर ड्रग इज इन द मार्केट, राइट। वी आर सेलिंग आर ड्रग प्रोडक्ट इन द मार्केट। सो अभी मार्केट में जो ड्रग प्रोडक्ट पेशेंट्स को सर्व कर रहा है, सो देयर माइट बी चांसेस कि हमें कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स मिले, कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स मिले। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स का मीनिंग है कि जो ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स कि जो बहुत दिनों बाद आते हैं, राइट। कि फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन से उसको हम 5 साल तक कंज्यूम करते रहे, उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट आएगा उसको बोलेंगे हम लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स। एंड द रेयर साइड इफ़ेक्ट्स आर दोज जो कि फॉर एग्जांपल वी कैन से कि लाखों में से किसी एक को ही वो साइड इफ़ेक्ट आता है, उसको हम रेयर साइड इफ़ेक्ट्स बोलेंगे। तो ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स को हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में कैप्चर करते हैं, राइट। एंड ऑल्सो ड्रग इंटरेक्शंस को भी देखते हैं। सो अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स है तो इट कैन लीड टू द लेबल चेंजेस। जो ड्रग प्रोडक्ट है उसके लेबल में चेंजेस आएंगे, कोई वार्निंग्स आएंगे, या फिर इवन द ड्रग प्रोडक्ट मे गेट रिकॉल्ड फ्रॉम द मार्केट। सो इसके कोई एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाए गए हैं। द फर्स्ट वन इज रोफेकॉक्सिब. The adverse effect identified in the post-marketing surveillance was heart attack and stroke, and because of that it was withdrawn from the US market in 2004, right. Then the another drug is a cisapride. It causes the cardiac arrhythmias. This is the adverse effect
which was identified in the post-marketing surveillance of the cisapride, and because of that it was also withdrawn from the US market. The next one is a fenfluramine. It causes the pulmonary hypertension and heart wall disease. This was the adverse effect which was captured in the post-marketing surveillance, and because of that it was also withdrawn from the market. Right, I hope I am clear with this topic. It is one of the most important topics, please do not miss it. So this is a summary table for the clinical trials. You can go through it by your own. Please have a look on this. Please try to understand or try to learn the each phase and try to know the importance of each phase. So please go through this. Thank you so much.